My lovely students, welcome to Mathological. Let us start the session. So first question of the session. Pushpa and Srivalli are two fruit sellers in the district of Shekhawati. Pushpa sells 2 mangoes for ₹8, while Srivalli sells 3 mangoes for ₹8. On a certain afternoon, when both have same number of mangoes left, Srivalli leaves and gives Pushpa all the remaining mangoes to sell. Pushpa puts all the mangoes together and starts selling 5 mangoes for ₹16. All the mangoes get sold by the end of the day. When they sit together to divide the money, they realize there is a shortage of ₹32. Assuming that they divide the money amount equally, so we have to find the loss of Pushpa in this deal. क्या लॉस हुआ होगा पुष्पा का डील में? Pause the video and try to solve it. So the fruit sellers are Pushpa and Srivalli. Pushpa sells 2 mangoes for ₹8. ठीक है, so 2 for ₹8. And Srivalli, instead, she is selling 3 mangoes for ₹8. And there comes a time on a certain afternoon when both have same number of mangoes left, and Srivalli leaves and gives Pushpa all the remaining mangoes to sell. So instead of selling Pushpa selling at the price 2 for ₹8, 3 for ₹8, क्या करता है वो? He puts all the mangoes together and starts selling 5 for ₹16. 2 for ₹8, 3 for ₹8, तो 5 for ₹16. Okay. But the point is कि number of mangoes with Pushpa and Srivalli are equal. Okay. So average price क्या आ जाएगा हमारा? What should be the average price? देखो, per mango price, number of mangoes with Pushpa and Srivalli are equal. And per mango price for Pushpa was 8/2. Because 2 he was selling for ₹8, 8/2 था. For Srivalli this was 8/3. So average price क्या होगा? Number of mangoes कितने भी हो, क्योंकि 1:1 का रेशियो टोटल इक्वल है, so that will be 8/2 plus 8/3/2, यानी कि average price will be, if they kept selling the way they were selling initially, so average price will be 8/2 plus 8/3/2. ठीक है, so that will be 8 into 5/6, 8 into 1/2 plus 1/3, यानी 8 into 5/6/2. ठीक है, so this is 40/12, which will be 5/3 rupees. Oh, sorry, 10/3 rupees. Average price will be 10/3 rupees per mango. Okay, ठीक है, so in total average price came out to be 10/3 rupees per mango. But Pushpa ने क्या किया? Pushpa puts all the mangoes together and starts selling 5 mangoes for ₹16. So if she is selling 5 mangoes for ₹16, in that case selling price का average क्या आ गया हमारा? That is 16/5, isn't it so? तो actual price at which it is sold, that is 16/5. So actual price was 16/5 rupees per mango, जिस पे कि sell किया, isn't it so? Clear है? So average price was 10/3 rupees and actual price at which Pushpa sold all the mangoes was 16/5. तो per mango कितना फायदा या नुकसान होगा? डिफरेंस ले लेते हैं. ठीक है, so 10/3 minus 16/5. This comes out to be equal to 10 into 550 minus 16 into 48/15. So that will be 2/15 rupees per mango. So the loss per mango is 2/15 rupees. And question is saying that there is a shortage of ₹32, यानी कि effectively there is a loss of ₹32 या difference of ₹32, isn't it so? ठीक है, so 2/15 rupees का difference आया है per mango, total difference आया ₹32 को, तो यहाँ से हमें number of mangoes मिल जाएगा कि if Pushpa had n mangoes remaining, Srivalli also had n mangoes, तो 2n की वैल्यू मिल जाएगा. 2n will be equal to total difference, that is ₹32, divided by difference per mango, which is 2/15. So this becomes 16 into 15, which is 240. So number of mangoes with Pushpa as well as Srivalli were 120 each. ठीक है, so 120 each mangoes were there with Pushpa and Srivalli. क्या ये part clear है? Is that part clear? ठीक है, so 120 each mangoes were there. Now since they divided total amount
इक्वली, जो भी अमाउंट उनको मिला इक्वली डिवाइड किया है। टोटल 240 मैंगोज थे, नंबर ऑफ, तो अमाउंट कितना मिला होगा पर मैंगो? इट वाज 16/5, तो 240 इंटू 16/5, ठीक है। सो दैट विल बी 48 इंटू 16। सो amount to one person will be 48 into 8, which is equal to 320 plus 64, 384 rupees. So Pushpa received 384 rupees. But number of mangoes with Pushpa कितने थे? 120 थे, 120 थे। And if he had sold at the initial price, जिस प्राइस पे वो सेल कर रहा था, तो he was selling 2 for rupees 8 और basically 1 for rupees 4. So 120 mangoes of Pushpa, he would have sold at 120 into 4 for 480 rupees. But now he has got an amount of 384 rupees instead. So there is a loss of 96 rupees for Pushpa. Pushpa lost rupees 96 in this deal. Is that clear? ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? और श्रीवल्ली को डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा बिकॉज शी वॉज सेलिंग एट 3 for rupees 8. सो पर मैंगो शी वॉज चार्जिंग 8/3 rupees, टोटल 120. तो 120 into 8/3 विल बी 320 rupees. तो अगर श्रीवल्ली के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शी वुड हैव रिसीव्ड 120 into 8/3, 320 rupees. But instead now she has received rupees 384. So there is a profit of 64 rupees for Shrivalli, while there is a loss of 96 rupees for Pushpa. 96 rupees for Pushpa. Okay, clear? Option D will be the answer. Next question. If Arun leaves from Kanpur bus station on a bike at 9:45 am, he can reach Prayagraj at 2:15 pm, driving at his usual speed 40 km per hour. Starting from 10 am, after every 12 minutes, one bus each leaves from Prayagraj for Kanpur and Kanpur for Prayagraj respectively. How many buses will cross Arun if he drives at a speed 50% higher than the usual and starts 15 minutes early? And the speed of each bus is 60 km per hour. Pause the video and try to solve it. ठीक है, सो सिनारियो क्या है? अरुण इज लिविंग कानपुर बस स्टेशन ऑन अ बाइक. इफ है यानी कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता है, यानी कि एक सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी है कि इफ अरुण लेफ्ट फ्रॉम कानपुर बस स्टेशन ऑन अ बाइक एट 9:45, देन ही कैन रीच प्रयागराज एट 2:15. सो फ्रॉम 9:45 to 2:15 कितना टाइम हुआ हमारा? 9:45 to 2:15, द टाइम इज 4.5 hours. 9:45 to 12, 2.25 hours. और फिर फ्रॉम 12 to 2:15, 2.25 hours. टोटल 4.5 hours का टाइम हुआ. So he is taking 4.5 hours at a speed of 40 km per hour. Speed is 40. So distance between Prayagraj and Kanpur, that is 180 km. As per the given information. ठीक है, 180 km है. Starting from 10, after every 12 minutes, one bus each leaves from Prayagraj for Kanpur and Kanpur for Prayagraj respectively. How many buses will cross Arjun if he drives at a speed 50% higher? ठीक है, सो स्पीड उसने क्या है? बढ़ा दिया अपना. इफ ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 50% हायर, 50% विच इज 1/2. सो इफ द स्पीड इज 2 units, सो द स्पीड विल बी 3 units इंस्टेड. अभी स्पीड कितना है? 40 है, 50% इंक्रीज करेगा तो नाउ द स्पीड विल बी 60 km per hour. So time taken will be 180/60, which is equal to 3 hours. दो डिस्टेंस की ऐसा हमें जरूरत नहीं था बिकॉज वी नो कि स्पीड अगर उसने बढ़ाया 50% से तो स्पीड का रेशियो इज 2:3. डिस्टेंस तो सेम ही बिटवीन कानपुर एंड प्रयागराज, तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट. इफ स्पीड इज बीइंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 3, टाइम विल डिक्रीज फ्रॉम 3 to 2. टाइम का रेशियो ऑपोजिट होगा, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ डिस्टेंस इज सेम. ठीक है, तो टाइम इज गोइंग फ्रॉम 3 to 2. नाउ 3 units की वैल्यू वाज 4.5 hours. सो 1 unit का वैल्यू इज 1.5 hours, so 2 units will be 3 hours. So now he will be able to cover the distance between Kanpur and Prayagraj in 3 hours instead. 3 hours में कंप्लीट कर लेगा. क्या ये क्लियर है? ऑल्सो द क्वेश्चन इज सेइंग ही स्टार्ट्स 15 minutes early. So basically he is starting from Kanpur 15 minutes earlier than 9:45. So at 9:30 p.m. he is starting from Kanpur. 9:30 a.m. he is starting from Kanpur and he is going to reach Prayagraj 3 hours later at 12:30 p.m. Is that clear? ठीक है, 9:30 a.m. पे he is starting from Kanpur and 12:30 p.m. पे he will be reaching Prayagraj. So any bus that can meet him can only meet him between this time duration.
because 12:30 पे he will be reaching the destination Prayagraj. 9:30 पे he started from Kanpur. Okay, and buses are starting from 10 a.m. तो buses तो 9:30 पे start नहीं हो रही, buses start हो रही है 10 a.m. पे. And one bus is going from Kanpur to Prayagraj, other bus is coming from Prayagraj to Kanpur. Okay, and he is going from Kanpur to Prayagraj. Okay, so first let us find out how many buses he will cross coming from Prayagraj to Kanpur. क्योंकि वो कानपुर से प्रयागराज जा रहा है, बस आ रही है प्रयागराज से कानपुर, तो दे विल बी डेफिनेटली क्रॉसिंग ईच अदर फॉर श्योर. ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? बसेस स्टार्ट फ्रॉम 10 AM. सो प्रयागराज से कानपुर आने वाली बस, फर्स्ट बस विल बी फ्रॉम प्रयागराज टू कानपुर. फर्स्ट बस विल बी starting at 10 AM. Next bus will be 10:12 AM. Then 10:24 AM. 10:36 AM. 10:48 AM. 11 AM. ठीक है, and so on and so forth. Last bus will be 11 AM, 11:12, 11:24, 11:36, 11:48, 12 PM, 12:12, 12:24. तो 12:24 AM would be the last bus. ठीक है, बिकॉज उसके बाद में नेक्स्ट होगी 12:36 PM पे, 12:36 PM पे स्टार्ट होगा. दिस इज PM. 12:36 PM पे स्टार्ट होगा, बट उससे पहले 12:30 पे ही विल रीच द डेस्टिनेशन. ठीक है, सो कितनी बसेस क्रॉस करेगा? बिकॉज ये जितनी भी बसेस होंगी, देखो ये समझो वो कानपुर से जा रहा है प्रयागराज, ही इज गोइंग फ्रॉम कानपुर टू प्रयागराज, बसेस आर कमिंग फ्रॉम प्रयागराज टू कानपुर. ठीक है, सो बस अगर 1 मिनट पहले भी स्टार्ट करेगी प्रयागराज से, तो भी बस विल क्रॉस अरुण फॉर श्योर. Isn't it so? Because both are going in the opposite direction, so they will for sure meet. Isn't it so? क्या ये क्लियर है? ठीक है, ये कानपुर से प्रयागराज जा रहा है, बस आ रही है प्रयागराज से कानपुर, तो कोई भी बस जो 10 AM पे बस स्टार्ट हुआ है, दैट विल डेफिनेटली मीट हिम समवेयर मिडवे. 10:12 AM की बस विल ऑल्सो मीट हिम समवेयर मिडवे. इवन 12:24 AM की बस भी डेस्टिनेशन के पास में ही मिलेगी, पर मिलेगी जरूर. तो सारी की सारी बसेस विल क्रॉस हिम फॉर श्योर. ऑल द बसेस विल क्रॉस हिम. नंबर ऑफ बसेस कितना होगा? टोटल टाइम हमारा कितना आ रहा है? 10 से 12:24 तक 144. तो 144 बाई 12 बिकॉज बसेज आर स्टार्टिंग एंड आफ्टर एवरी 12 मिनट्स, तो +1 हो जाएगा. टोटल 13 बसेज हो जाएंगे. तो 13 बसेज विल क्रॉस हिम. ओके, 13 बसेज विल क्रॉस हिम. ओके, सो टोटल 13 बसेज विल क्रॉस हिम. 13 buses will cross him coming from Prayagraj to Kanpur. Now, number of buses that will cross him going from Kanpur to Prayagraj. Okay, that we also have to find out. Number of buses crossing him going from Kanpur to Prayagraj कितनी होंगी? Okay, is that clear? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नंबर ऑफ बसेस क्रॉसिंग हिम गोइंग फ्रॉम कानपुर टू प्रयागराज, तो कितनी ऐसे बसेस होंगी? नाउ हिज स्पीड इज 60 km/h. Speed of the bus is also 60 km/h. And he is starting at 9:30. ठीक है, so he is starting at 9:30. अब देखो होगा क्या, 9:30 पे वो उसने स्टार्ट किया. So let us say a bus is starting at 10 AM. First bus will be starting at 10 AM from Kanpur to Prayagraj. And he will be, let us say, somewhere here. Now he is moving at the speed of 60 km/h. And bus is also moving at a speed of 60 km/h. Both are moving in the same direction. और दोनों की स्पीड भी सेम है, तो क्या बस कभी भी कैचअप कर पाएगी? क्योंकि क्रॉस करने के लिए कैचअप तो करना पड़ेगा ना अरुण को. इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. सो नो बस विल बी क्रॉसिंग, नो बस विल क्रॉस अरुण गोइंग फ्रॉम कानपुर टू प्रयागराज. Isn't it so? Because speed is same. दोनों का स्पीड सेम है, तो कोई भी बस क्रॉस नहीं कर पाएगी. द ओनली बसेस क्रॉसिंग विल बी कमिंग फ्रॉम प्रयागराज टू कानपुर. सो आंसर विल बी 13 इन दिस केस. आंसर विल बी 13. ओके, क्लियर है? अब बस का स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं. तो जस्ट इन केस अगर बस का स्पीड हो जाता है 60 के बजाय 80, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो प्रयागराज से कानपुर आने वाली तो सारी की सारी बसेस का डिट्टो मामला रहेगा. पहले भी 13 बसेस वर क्रॉसिंग हिम, अभी भी 13 बसेस क्रॉस करेंगी. बस की स्पीड से फर्क नहीं पड़ेगा. स्पीड 60 हो, 80 हो, 100 हो, फर्क नहीं पड़ता. द पॉइंट इज दैट इन ऑल केसेस 13 बसेस विल क्रॉस हिम विच आर कमिंग फ्रॉम प्रयागराज टू कानपुर. बट कानपुर टू प्रयागराज वाला केस में क्या होगा वो हमें जानना पड़ेगा. सो एट 9:30 ही स्टार्टेड. So at 10 AM
he will be 30 kilometers away from Kanpur. ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स प्रयागराज, बट ही इज 30 किलोमीटर्स अवे. ओके, स्पीड 80 कर दिया है बस का. ओके, स्पीड ऑफ द बस विल बी 80. Okay, so he is going towards Prayagraj, his speed is 60, and now first bus will be starting at 10 a.m. So at 10, first bus is starting and speed of bus is 80 km per hour. His speed is 60, bus ka speed is 80, and both are moving in the same direction. So when two objects are moving in the same direction, relative speed क्या हो जाता है? If speed of one is s1, speed of two is s2, s1 minus s2 will be relative speed. और बस का स्पीड फास्ट भी होना चाहिए इन कंपैरिजन टू अरुण का स्पीड, तभी तो बस कैचअप कर पाएगा. सो डिफरेंस ऑफ स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर. स्पीड विल बी 80 minus 60, 20 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड विल बी. एंड अरुण इज ऑलरेडी 30 किलोमीटर्स अहेड ऑफ द बस. सो टाइम टेकन बाय बस टू कैचअप कितना होगा? टाइम टेकन बाय बस टू कैचअप विल बी डिस्टेंस बिटवीन बस एंड अरुण, दैट इज 30 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड विच इज 20 किलोमीटर पर आवर. So 30 by 20, 1.5 hours will be taken by bus to catch up Arun. So bus will be crossing Arun by after 1.5 hours from starting of the bus. So 10 a.m. पे bus started plus 1.5 hour. The first bus will be crossing Arun at 11:30 a.m. First bus will cross at 11:30 a.m. Bus number 1. That started at 10 a.m. Okay. ठीक है, अब सेकेंड बस कब क्रॉस करेगी? बस नंबर 2 कब क्रॉस करेगी? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बस नंबर 2, दिस वाज बस नंबर 1. बस नंबर 2 विल बी स्टार्टिंग एट 10:12. इट विल स्टार्ट एट 10:12. ठीक है, सो बाई 10:12 कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा अरुण ने? सो अरुण वॉज एट दिस लोकेशन एट 10:12 पे कहां पे होगा? सो एट 10:12 ही विल बी फर्दर. तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? इन 12 मिनट्स ही विल कवर डिस्टेंस इक्वल टू 6 किलोमीटर्स, सॉरी 12 किलोमीटर्स, बिकॉज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर्स. सो नाउ डिस्टेंस विल बी 42 किलोमीटर्स फ्रॉम कानपुर. एट 10:12 ही इज 42 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कानपुर. ठीक है, और अगेन रिलेटिव स्पीड तो सेम ही रहेगा 20 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम टेकन बाई बस 2 टू क्रॉस कितना होगा? टाइम टेकन बाई बस 1 वॉज 1.5 आवर्स. टाइम टेकन बाई बस 2 टू क्रॉस विल बी इक्वल टू 42 kilometers distance between bus and Arun divided by 20 km per hour. 42 by 20, which will be 21 by 10, which will be 2 and 1 by 10 hour, which is 2 hours and 6 minutes. 2 hours and 6 minutes. So bus 2 will cross Arun. 10:12 पे स्टार्ट किया बस, तो 10:12 पे तुम ऐड करोगे, 10 में ऐड नहीं करना है, प्लस 2 hours 6 minutes. So this will be 10 plus 2, 12:18 a.m. 12:18 a.m. Is that part clear? क्या ये क्लियर है? ठीक है. नाउ थर्ड बस विल बी स्टार्टिंग एट 10:24. ठीक है, थर्ड बस विल स्टार्ट एट 10:24. So by then Arun will be 42 plus 12, which is 54 kilometers away. 54 kilometers away. So time taken to catch up कितना होगा? Time taken to catch up by bus 3, this will be 54 divide by 20. ठीक है, so that will be 27 by 10, यानी कि 2 hours and 7 by 10. 2 hours and 7 by 10 hour additionally, यानी कि 7 by 10 कितना हो जाएगा? 42. तो 2 hours 42 minutes. 2 hours 42 minutes. तो बस 3 कब कैचअप कर पाएगी? 10:24 प्लस 2 hours 42 minutes. तो 24 plus 42, that is 66. 66, isn't it so? तो क्या हो जाएगा टाइम हमारा? 10 plus 2, 12 plus 66, यानी कि 13:06 PM.
That will be the time, isn't it so? और ऑलरेडी 12:30 पे ही विल बी रीचिंग, 12:30 पे तो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा. सो क्या पॉसिबल है थर्ड बस क्रॉस कर पाएगी? नहीं क्रॉस कर पाएगी. ठीक है, बिकॉज ही विल रीच डेस्टिनेशन, ही विल रीच प्रयागराज एट 12:30. तो इस बस को मौका ही कहां मिलेगा क्रॉस करने का? सो ओनली 2 buses विल बी एबल टू क्रॉस हिम, बस नंबर 1 एंड बस नंबर 2. क्या ये पार्ट क्लियर है? ऑल्सो इफ यू ऑब्जर्व पैटर्न, फर्स्ट बस विल बी क्रॉसिंग एट 11:30, सेकंड बस कब क्रॉस करेगी? 48 मिनट्स के बाद में. 48 मिनट्स के बाद में, बिकॉज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अरुण इन दोज 12 मिनट्स, जब 12 मिनट्स के बाद में नेक्स्ट बस स्टार्ट कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड इन दोज 12 मिनट्स इज 12 किलोमीटर्स. ठीक है, और फिर उस 12 किलोमीटर्स को कवर करने में बस को टाइम कितना लगने वाला है? वो टाइम लगने वाला है 36 मिनट्स का. ठीक है, द पॉइंट इज दैट फर्स्ट बस ने स्टार्ट किया 10 पे, and this bus was able to catch up him after 1.5 hours. ठीक है, नेक्स्ट बस स्टार्ट करेगी 12 मिनट्स के बाद में एट 10:12. तो अरुण इन दोज 12 मिनट्स विल बी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स. सो नाउ दिस 12 किलोमीटर्स एडिशनल डिस्टेंस कैन बी कवर्ड अप बाय बस इन 12/20 relative speed 20. तो दैट विल बी 6/10 और 3/5 आवर्स में, विच इज 36 मिनट्स में. ठीक है, सो बस विल बी कवरिंग अप दिस डिस्टेंस इन एडिशनल 36 मिनट्स. 12 मिनट्स के बाद में स्टार्ट कर रही है और 36 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे. तो कितना टाइम लगेगा? 1.5 आवर्स. तो देखो पहली बस को ही लग रहा था, प्लस 12 मिनट्स बाद में स्टार्ट कर रही है, 36 मिनट्स और लगेगा, यानी कि प्लस 12 प्लस 36 यानी कि प्लस 48 मिनट्स. ओके, सो एडिशनल टाइम टेकन इज 48 मिनट्स. सो 11:30 प्लस 48, ठीक है, ये 1.5 हम बात कर रहे हैं. 12 मिनट्स 1.5 आवर्स प्लस 12 प्लस 36, ये जो 12 एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, ये किसका बता रहे हैं? ये 12 के बाद में जो स्टार्ट कर रही है. ठीक है, ऐड नहीं होगा ये यहाँ पे, मतलब कि 10-12 में ऐड नहीं करेंगे इसको. बट द होल पॉइंट इज कि अगर हम पूरे 11:30 में ऐड करते हैं, सो विल बी एडिंग 12 एज वेल. ठीक है, अदरवाइज 1.5 आवर्स प्लस 36 मिनट्स, दिस विल बी एडेड इन 10-12, और यहाँ पे 11:30 में ऐड करेंगे 48, तो हमें स्ट्रेट अवे मिल जाएगा वैल्यू 12:18 PM फॉर द सेकंड बस. अब थर्ड बस के लिए बात करते हैं, तो प्लस 12 कर रहे हो, 10:24 पे बस स्टार्ट कर रहा है, बट एट टाइम दिस विल बी कैचिंग अप इज प्लस 48, सो दैट विल बी 13:06 PM या 1 hour 6 minutes. ठीक है, फिर नेक्स्ट बस के लिए बात करें तो अगेन 48 ऐड कर दोगे. सो अगर हमें जस्ट इन केस स्ट्रेच ज़्यादा लंबा होता तो स्ट्रेट अवे हमें प्लस 48 करके यहाँ पे भी AP मिल जा रहा है, और उस AP के लिए हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते. तो कितना भी और भी टाइम होता जर्नी का, तो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते थे. क्या है, क्लियर है? ठीक है, इन दिस क्वेश्चन तो टोटल 2 बसेज आर क्रॉसिंग, 13 ऑलरेडी उसको क्रॉस कर रही थी, 13 विच वर गोइंग फ्रॉम प्रयागराज टू कानपुर, एंड 12 2 which are going from Kanpur to Prayagraj. So 13 plus 2, answer will be 15 in case if speed of the bus is 80 km/h. Okay, क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. गिवन 5 points A which has coordinates 5,5, B which has coordinates 4,10, C -6,-5, D 12,0 and E 0,9. Every minute all the points move by doubling their abscissa and by halving their ordinates. This process continues for 24 hours. After 24 hours, which 2 points are the closest? 24 hours तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, तो आफ्टर 24 hours, which 2 points are the closest? Abscissa and ordinate क्या होता है? If a point has coordinates x, y, then x coordinate is known as abscissa and y coordinate is known as ordinate. So the question is saying that each point is moving by doubling their abscissa. Abscissa is doubling and ordinate is getting halved. This process continues for 24 hours, or every minute this is happening. 24 hours में there are total 1440 minutes. ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट डबल हो रहा है तो लार्ज होता जाएगा, isn't it so? अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो लार्ज होता जाएगा पॉजिटिव में, और निगेटिव है तो निगेटिव में बहुत लार्ज होता जाएगा. और एवरी मिनट दिस इज डबलिंग, और टोटल 1440 मिनट्स है, यानी कि कितने मैग्नीट्यूड से लार्ज होगा? इफ इट इज डबलिंग, so by the end this will be 2 to the power 1440 times, which is very huge, very huge, because even 2 to the power 10 is 1024. 2 to the power 20 will be 1024 whole squared. So 2 to the power 1440 will be 1024 to the power 144, which is very high, very huge number. ठीक है, so if it is doubling, it is getting multiplied by 2 to the power 1440, and if it is halving every minute, so this will be divided by 2 to the power 1440. और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 to the power 1440 को, तो this will be almost 0.
बिकॉज वैल्यूज हमारी क्या है 5 10, बिकॉज ऑर्डिनेट केस में हम डिवाइड कर रहे हैं 5 10 माइनस 5 9, तो दैट विल बी ऑलमोस्ट जीरो. So basically for all points A, B, C, D, E, y coordinate will be very close to 0. Y coordinate will be almost 0. ठीक है, तो 0 भी लिख सकते हो उसको. Exactly 0 नहीं होगा but almost 0 होगा. ठीक है, almost. And if y coordinate is 0, question is asking after 24 hours which two points are the closest. तो closest points के लिए हमारे लिए important क्या होगा, एब्सिसा का वैल्यू. Isn't it so? एब्सिसा का वैल्यू क्या है, that is important. या फिर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज y कोऑर्डिनेट तो ऑलमोस्ट जीरो है, और ऑलमोस्ट जीरो है तो ऑलमोस्ट इक्वल है. ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट फॉर a विल बी 5 और हर आर में डबल, हर मिनट में डबल हो रहा है, तो 5 इंटू 2 टू पावर 1440. फॉर b दिस विल बी 4 इंटू 2 टू पावर 1440. फॉर c -6, नेगेटिव है नेगेटिव ही रहेगा, -6 इंटू 2 टू पावर 1440. फॉर d दिस विल बी 12 इंटू 2 टू पावर 1440. And E, for the E this will be 0 into 2 to the power 1440. तो for E this will be 0 only. E के लिए तो 0 ही रहेगा, because 0 में कुछ मल्टीप्लाई करो रहेगा 0 ही. So our purpose is to find out which two points are the closest. Okay, ठीक है. So कौन से points closest हो सकते हैं? If we check the distance between A and C, the distance will be 5 plus 5 और -6, यानी कि 5 plus 6 11 into 2 to the power 1440. तो distance AC will be 11 into 2 to the power 1440. Basically sum of, अगर ऑलरेडी हम इनिशियल वैल्यूज को देखें तो 5 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना था, 11 का था, तो x कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस इनिशियली है. इफ वी कैन ऑब्जर्व, तो इनिशियल डिफरेंस हम देख लें और जिस केस में सबसे कम होगा वही हमारा आंसर होगा, बिकॉज सारे केस में ये 2 to the power 1440 तो सारे ही में अप्लाई हो रहा है यूनिवर्सली. इजंट इट सो? तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि इनिशियली x कोऑर्डिनेट्स किन दो पॉइंट्स के क्लोजेस्ट थे, फॉर विच टू पॉइंट्स x कोऑर्डिनेट्स वर क्लोजेस्ट और एब्सिसा वाज क्लोजेस्ट फॉर द इनिशियल वैल्यूज. ठीक है, सो इनिशियल वैल्यूज के लिए कहां पे क्लोजेस्ट थे हमारे, फॉर ए एंड बी 5 and 4 आर द वैल्यूज, एग्जैक्टली 1 का डिफरेंस है, तो दीज वर द क्लोजेस्ट. ठीक है, ए और सी में -6 है, 5 और -6 है, तो 11 का डिफरेंस है, और कहीं पे डिफरेंस आ नहीं रहा इतना कम. ठीक है, सो ए एंड बी, फॉर ए एंड बी दीज वर क्लोजेस्ट इनिशियली. सो फाइनली भी डिस्टेंस इनके बीच में ही सबसे कम होगा. डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा हमारा 5 -4, यानी कि दिस विल बी 1 into 2 to the power 1440. So this is, these two are closest points A and B. A and B are closest. Option D will be the answer. ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्या ये क्लियर है? और बाकी डिस्टेंस निकालना हो निकाल भी सकते हैं, बट जरूरत नहीं है. हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्रक्स यही था कि अल्टीमेटली कितना भी तुम बड़ा वैल्यू कर लो, इनिशियली क्या है, y कोऑर्डिनेट इज गेटिंग 0 बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाई हाफ, डिवाइडिंग बाई 2. ठीक है, हाफ कर रहे हैं हर बार, डिवाइडिंग बाई 2, और टोटल 1440 टाइम्स हम डिवाइड करेंगे 2 से, सो दिस विल बी ऑलमोस्ट 0. तो y कोऑर्डिनेट विल बी इररिलेवेंट. वैल्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर y कोऑर्डिनेट अनलेस दैट वाज वेरी ह्यूज. ठीक है, सो दैट इज नॉट द केस, सो डेफिनेटली दिस इज इररिलेवेंट. एंड फॉर x कोऑर्डिनेट्स, इफ x कोऑर्डिनेट्स वर क्लोजेस्ट इनिशियली, तो फाइनली भी वही क्लोजेस्ट रहेंगे बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग एवरी टाइम बाई 2. ठीक है, हाँ अगर 2 के बजाय हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो साइन प्लस माइनस होता, तो फिर लास्ट में भी फर्क पड़ सकता था. ठीक है, बिकॉज सी में कोऑर्डिनेट -6 था, तो उससे मे भी डिफरेंस पड़ सकता था, बट वैसा तो हम कर नहीं रहे कुछ भी. सो दैट इज वाई दैट इज इररिलेवेंट ऑल्सो. और हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट जहां पे क्लोजेस्ट थे हमारे फॉर इनिशियल कंडीशन, वही सेम हमारे फाइनली भी रहेंगे, यानी कि ए और बी के लिए इनिशियली क्लोजेस्ट थे, तो फाइनली भी आंसर विल बी ए बी ओनली. ए एंड बी विल बी द आंसर, ऑप्शन डी. क्या क्लियर है? एंड सिमिलर क्वेश्चन आस्क्ड इन दैट इन प्रीवियस ईयर. ओके, is that clear? Next question. A deer makes 9 leaps in the same time in which a tiger makes 5. While a deer jumps 1.2 meter in a leap, a tiger can jump 15 meters in 6 jumps. The deer was 18.5 meters away when she saw the tiger and started running in the opposite direction. By the time tiger started running in the direction, she had already taken 3 leaps. ठीक है, सो टाइगर के स्टार्ट करने से पहले ही डियर ने 3 जंप और ले लिया. फाइंड द नंबर ऑफ लीव्स टाइगर नीड्स टू मेक टू कैच द डियर. नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. अ सिंपल क्वेश्चन इफ यू हैव अंडरस्टूड द फंडामेंटल, अदरवाइज दिक्कत देगा लैंग्वेज और चीजों की वजह से. In such a question,
सिंस वी आर नॉट कंसर्न विद टाइम, टाइम सेकेंड्स में हो, मिनट्स में हो, आवर्स में हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. वी आर ओनली कंसर्न विद कि सेम टाइम पीरियड में डियर इज मेकिंग 9 लीप्स एंड टाइगर इज मेकिंग 5 लीप्स. ओके, तो सेम टाइम पीरियड में. सो नंबर ऑफ लीप्स पर यूनिट टाइम for deer is 9 and for tiger is 5. एंड सिंस डियर का लीप का लेंथ अलग है, टाइगर का लीप का लेंथ अलग है, तो कितना लेंथ कवर करता है पर लीप, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. डियर इज कवरिंग 1.2 मीटर्स इन अ लीप. ठीक है, सो डिस्टेंस पर लीप, लेंथ पर लीप, या डिस्टेंस पर लीप कह देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड पर लीप. That is 1.2 meters for deer and 15 meters in 6 jumps, यानी कि 1 jump में कितना आ जाएगा 15 by 6 which is 2.5 meters. So 2.5 meters for tiger. Distance per leap and number of leaps per unit time is 9 for deer, 5 for tiger. So distance covered per unit time यानी कि speed क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, speed will be distance per unit time. So multiply these two values, 9 into 1.2, that will be 10.8 meters. अब वो टाइम तुम्हारा मिनट में हो, सेकंड में, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज 10.8 मीटर्स. अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर तुम्हें फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो सेकंड मान लो, ठीक है, कि 10.8 मीटर पर सेकंड हो जाता है. और फॉर टाइगर दिस विल बी 5 इंटू 2.5, 12.5 मीटर्स. So in the same time, distance covered by deer is 10.8 meters and distance covered by tiger is 12.5 meters. Okay. The deer was initially 18.5 meters away. So let us say this is tiger, this is deer, distance between them is 18.5 meters. Deer ने tiger को देखा, deer will be running in the opposite direction and deer took 3 steps before tiger started to catch up. ठीक है, so deer had already taken 3 leaps. So distance covered in 3 leaps कितना होगा? This distance will be 3 into 1.2 because distance covered in 1 leap of deer is 1.2 meters. So this will be 3.6 meters. So already they had a distance between them 18.5. Now 3.6 meters additional distance is there. So distance between tiger and deer will be 18.5 and 3.6 plus 3.6. So that will be 22.1 meters. Now distance between them is 22.1 meters. And this is the distance that needs to be covered by tiger. Okay. ठीक है, that needs to be covered by tiger. Okay. So in same time, deer is covering 10.8 meters, tiger is covering 12.5 meters. So कितना difference आ रहा है? The difference in per unit time, that difference is 1.7 meters. Okay. So basically, when tiger takes 5 leaps, ठीक है, और obviously in same time deer is taking 9 leaps, but when tiger takes 5 leaps, he is covering a distance of 12.5 meters, while deer in the same time is covering a distance of 10.8 meters. So tiger is able to fill the gap between them of 1.7 meters. 1.7 meters का gap fill कर लेता है in 5 leaps. और टोटल गैप कितना फिल करना है? 22.1 मीटर से गैप फिल करना है बिटवीन देम. द गैप इज 22.1 मीटर्स. कितना टाइम लगेगा? डिवाइड कर दो. सो 17 1s are 7 और 17 3s are 51, तो 13 टाइम्स है. 13 टाइम्स है 1.7 का. ठीक है, सो 5 लीव्स में टाइगर इज एबल टू कवर अप अ गैप ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 1.7 मीटर्स बिटवीन देम. सो इन 5 into 13, 65 leaps, tiger will be able to cover the distance, complete distance. So number of leaps needed by tiger to catch the deer will be 65. Option C will be the answer. Is that part clear? ठीक है, ओके. थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत ऐसे मानो कि डियर और टाइगर है. In 1 second, they are covering. Deer is taking 9 leaps. Tiger is taking 5 leaps. ठीक है, और distance covered per leap is 1.2 meter for deer and 2.5 meters for
टाइगर. सो स्पीड क्या आ जाएगा? स्पीड फॉर डियर विल बी 10.8 मीटर्स पर सेकेंड. स्पीड फॉर टाइगर विल बी 12.5 मीटर्स पर सेकेंड. Difference between their speeds is 1.7 meters per second. Okay, and deer was already 18.5 meters away. Deer took 3 leaps before tiger started running. So in 3 leaps deer will be covering 3.6 meters distance. So distance between them is 22.1 meter और 1.7 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड है. दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, आगे डियर भाग रहा है, पीछे टाइगर और भी तेज स्पीड से भाग रहा है. तो रिलेटिव स्पीड हमारा आ जाएगा 1.7 मीटर पर सेकंड. तो टाइम टेकन विल बी व्हाट? टाइम टेकन विल बी 22.1 बाय 1.7 विच विल बी 13 सेकंड्स. एंड डिस्टेंस कवर्ड, लीप्स कवर्ड बाय टाइगर कितना होगा? 13 सेकंड्स में लीप्स टेकन बाय टाइगर विल बी 13 into 5, 65 लीप्स. सो आंसर विल बी 65 स्ट्रेट अवे. अब क्वेश्चन अगर टाइगर के बजाय डियर के लिए पूछता तो आंसर क्या होता? डियर हैज टेकन 9 लीप्स. ठीक है, सो नंबर ऑफ लीप्स टेकन बाय डियर, ठीक है, नंबर ऑफ सेकंड्स आर 13. तो 13 into 9 बिकॉज पर सेकंड शी इज टेकिंग 9 लीप्स. 13 into 9 इज 117. बट डियर स्टार्टेड रनिंग बाय द टाइम टाइगर स्टार्टेड रनिंग इन अ डायरेक्शन शी हैड ऑलरेडी टेकन 3 लीप्स. तो 3 लीप्स तो पहले ही ले ली थी, टाइम स्टार्ट होने से पहले, टाइमर स्टार्ट होने से पहले, सो दैट उसको एडवांटेज रहे. तो 3 मोर यू हैव टू ऐड हियर. ठीक है, ये ध्यान रखना है. लास्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर डियर के लिए पूछा होता कि 120 लीप्स शी हैज टेकन इन टोटल. सो फॉर डियर नंबर ऑफ लीप्स इज 120 एंड फॉर टाइगर नंबर ऑफ लीप्स इज 65. ओके, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, सो आंसर विल बी 65 लीप्स इन दिस केस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Anu, Minu and Chetna were standing on a circle of radius 5 meter drawn inside a park. The distance between Anu and Minu and that between Minu and Chetna was 60 meters each. To find the distance between Anu and Chetna. The 3 persons are standing on a circle of radius 5 meters drawn inside a park and distance between 2 pairs is given. The distance between the third pair हमें find out करना है. So let us make the diagram first. Okay, let us say this is Anu. Anu, Minu and Chetna. Distance between Anu and Minu and Chetna is 6 meters each. So this is 6, this is also 6. And the distance between Anu and Chetna is being asked. Let us say that distance is equal to x. So basically a triangle form हो रहा है, isn't it so? A triangle is getting formed. 2 sides of the triangle are known. Third side we need to find out. And what additional information we know? That circle has a radius of 5 meters. So this circle will be circumcircle of triangle AMC. Circumcircle है of triangle AMC. है कि नहीं? ठीक है, so let us say this is circumcenter. So these distances will be 5. Distance of the circumcenter from the vertices will be equal to 5. This is 5, this is 5, this is 5. Let us say this point is O. So now how can we solve this question? 2 approaches हैं, दोनों को समझते हैं. ठीक है, फर्स्ट अप्रोच विल बी दैट सर्कमसेंटर कैसे बनता है. सर्कमसेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट of perpendicular bisectors. Intersection point of perpendicular bisectors. Isn't it so? ठीक है, और फॉर द ट्राइंगल एज्यूम दैट MC, इस सर्कल के अंदर जो MC लाइन है, लाइन MC, दैट लाइन MC इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल. सर्कल का कॉर्ड है, isn't it so? है कि नहीं? So if we draw perpendicular from point O, ना एक सेकेंड MC पे नहीं, हमें AC पे ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ AC. ओके, सो देखो, अगर हम O से M से जो लाइन ज्वाइन करेंगे, O से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें,
सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऑन लाइन ए सी, एक काम करते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, सो दैट तुम्हारे लिए विजुअलाइज करना आसान हो, एम और ए तो यहाँ पे रखा है हमने, तो ए को नीचे कर देते हैं, एम को ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी फिर। एक सेकेंड, विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा। और वैल्यूज हमें क्या नोन है, ए और एम के बीच का डिस्टेंस नोन है, दैट इज 6, और एम और सी के बीच का डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो 6। ओके, so this becomes x. So now we are dropping a perpendicular from point O on AC. So AC is the chord, AC is the chord of the circle. जब हम perpendicular ड्रॉप करेंगे O से, तो that will bisect AC in two parts. ठीक है, let us say this point is P, तो AP will be equal to PC. Because perpendicular from the center of the circumcircle will bisect the chord. Center of the circle will bisect the chord. Clear है? तो AP will be equal to PC, यानी कि AP हमारा इक्वल टू आ जाएगा x by 2, और PC will also be equal to x by 2. ओके, या फिर कह देते हैं टोटल डिस्टेंस हम 2x मान लेते हैं, सो AP will be x एंड PC will also be equal to x. क्या ये पार्ट क्लियर है? Is this part clear? और by symmetry, if you observe, because AM is also 6, MC is also 6, both these distances are equal. तो ये लाइंस भी तो इक्वल ही है हमारी, AM एंड MC. ठीक है, सो बाय सिमेट्री MO MP दो परपेंडिकुलर है, ठीक है, MO और OP सेम ही लाइन होगा, बिकॉज सिमेट्री, अगर सिमेट्री नहीं होता तो नहीं कह सकते थे, बिकॉज OP परपेंडिकुलर है, बट अब MO को कोलिनियर नहीं कह सकते MO और P को, बट क्योंकि सिमेट्री है तो डेफिनेटली MP विल बी परपेंडिकुलर. Isn't it so? क्या ये बात समझ पा रहे हो? Only because of symmetry we can conclude that. And if we are able to conclude that, now we have two right angle triangles that we can use to solve it. ठीक है, दो right angle triangles हमारे पास, and those two right angle triangles are, one triangle is MPA, तो triangle MPA is a right angle triangle. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, because we know MA, we do not know MP, we know MO, और OP को assume कर लेंगे एक वैल्यू. लेट अस से OP हम, क्योंकि x जैसे माना था, OP को y मान लेते हैं, OP इज इक्वल टू y. तो इफ OP इज इक्वल टू y, सो इन ट्रायंगल MPA, MA का स्क्वायर विच इज 6 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू MP का स्क्वायर विच विल बी 5 प्लस y का स्क्वायर, प्लस AP का स्क्वायर विच विल बी x स्क्वायर. ओके, तो 36 इज इक्वल टू 25 प्लस 10y प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. Similarly, there is another triangle, the छोटू वाला triangle, triangle AOP, that is also right angle triangle. This is also right angle triangle. अब इसमें अप्लाई कर देते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, so in this triangle AO square which is 5 square, this is equal to OP square which is equal to y square plus AP square which is equal to x square. तो y square plus x square आ गया equal to 25. बस पुट कर दो इस वैल्यू को यहाँ पे, y square plus x square 25 पुट कर दोगे, सो हमें आ जाएगा 36 is equal to 25 प्लस 10y प्लस 25. तो यहाँ से 10y विल बी इक्वल टू -14, तो y विल बी इक्वल टू -1.4. कोई दिक्कत नहीं है, y इक्वल टू -1.4 ओनली इंप्लाइज ये जो पॉइंट O था हमारा, ये इनसाइड द ट्रायंगल नहीं था, ट्रायंगल के बाहर रहा होगा. यही तो मतलब हुआ. ठीक है, यही तो मतलब हुआ, क्योंकि ट्रायंगल के बाहर रहेगा तभी ऐसा पॉसिबल है. डायग्राम फिर से बनाता हूँ इसका, कैसा बनेगा एक्चुअल में. तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा कि O विल बी समवेयर हियर. ओके, दिस इज पॉइंट O. तो इनसाइड होने के बजाय बाहर होगा पॉइंट O, एंड दैट इज वाई दिस विल बी डिस्टेंस y. सो टोटल डिस्टेंस, इफ दिस टोटल इज 5, तो 5 में y को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, दैट इज वाई y इज नेगेटिव. ओके, y इज नॉट पॉजिटिव, यानी 5 प्लस y लेंथ नहीं आएगा हमारा, 5 माइनस y लेंथ आएगा, या 5 माइनस 1.4 लेंथ आएगा. ठीक है, बिकॉज y तो नेगेटिव है, तो 5 माइनस 1.4 विल बी द एक्चुअल लेंथ. यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ MP विल बी इन दैट केस 3.6 meters. Okay, is that clear? बट क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था डिस्टेंस बिटवीन अनु एंड चेतना, यानी कि AC लेंथ चाहिए, 2x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालो यहाँ से, x की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू -1.5 1.4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है 25,
पुट कर दो y की वैल्यू. इफ y इज इक्वल टू -1.4 यानी -7/5, 14/10, 7/5, पुट कर दो वैल्यू. सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 माइनस 7/5 का होल स्क्वायर, -7/5 का होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर. तो 25 माइनस -7/5 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी 25 माइनस 49/25, which will be 25 into 25 यानी 625 minus 49/25, 576/25. एक्स स्क्वायर आ गया 576/25, तो x will be equal to 24/5, which is 4.8 meters. x came out to be 576 is 24 square, तो 24/5 which is 4.8 meters. 2x हमारा AC length will be equal to 2x which is equal to 9.6 meters. क्या ही क्लियर है? ऑप्शन डी विल बी द आंसर. इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, क्या ही क्लियर है? अब एक और अप्रोच देख सकते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का. देखो, डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा छोटा बन गया, बट ठीक है, ट्राई करते हैं. This is 6, this is 6, this is 2x. This is perpendicular. This is 5, this is 5, this is 5. Okay. Now let us draw perpendicular from these points. And since circumcenter is intersection point of perpendicular bisectors, तो perpendicular जो भी डालोगे वो bisect करेगा. Isn't it so? जो भी perpendicular डालोगे साइड पे वो bisect करेगा, क्योंकि perpendicular bisectors का intersection point तो circumcenter होता है. So this length will be 3. This is also 3. This is also 3. This is also 3. This will be x. This will be x. Okay. Now this length is y. Now एक छोटू ट्रायंगल में इसमें ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज सारे ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम ही होंगे. ठीक है, तो एक छोटू ट्रायंगल में ऑब्जर्व करते हैं. सो दिस इज 3 एंड दिस इज 5 और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या देख पा रहे हो कि वन साइड इज 3, वन इज 5, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 वाला. 3 4 5 वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा. Isn't it so? तो हाइट विल बी 4 यूनिट्स. This height will be 4 units. Similarly, this will also be 4 units. Okay, and area of triangle ABC, this will be equal to sum of parts, छोटू वाले triangles. ठीक है, so if this point is, सेंटर को कोई नाम दिया था क्या हमने? O दिया था. ठीक है, so this will be sum of triangle AOM का एरिया प्लस ट्रायंगल MOC का एरिया प्लस ट्रायंगल AOC का एरिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या होगा? बाय सिमेट्री वी नो कि MOP आर कोलिनियर बाय सिमेट्री, बिकॉज M से P पे तुम जो ड्रॉप कर रहे हो ठीक परपेंडिकुलर, दैट विल बी सेम एज OP. तो MOP हमारे कोलिनियर्स होंगे, कोलिनियर होंगे बाय सिमेट्री. क्या एक पार्ट क्लियर है? बिकॉज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, सो इज दैट पार्ट क्लियर? कि if we are joining point M, vertex M to mid point of AC, that will be perpendicular because isosceles triangle है. In any isosceles triangle, if this side is equal to this side, then median, this वाला median, ठीक है, अगर ABC हमारा isosceles triangle है, AB is equal to AC, then this median AD which is the median, ठीक है, this will also be perpendicular. ठीक है, सो इफ यू ज्वाइन M एंड P बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, क्योंकि O से हमने ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो OP हमारा क्या है? OP हमारा परपेंडिकुलर है और P मिड पॉइंट है, सो MP विल बी मीडियन और मीडियन भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि MOP विल बी कोलिनियर. ठीक है, इतना ज्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, सिमेट्री दिख रही है तो बस सीधे समझ लो उसको स्ट्रेट अवे और आगे बढ़ जाओ. ओके, एरिया ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल सम ऑफ पार्ट्स. अब ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा? दैट विल बी बेस AC
क्योंकि जो वैल्यूज अननोन है उन्हीं को हमें सॉल्व करके निकालना है. सो बेस AC दैट इज 2x. सो 1/2 into 2x into MP which is 5 plus y. Okay, and this will be equal to sum of parts. तो MOA का एरिया क्या आ जाएगा? दैट विल बी 1/2 ट्रायंगल MOA 1/2 into 4 into 6 प्लस ट्रायंगल MOC 1/2 into 4 into 6 प्लस ट्रायंगल कौन सा बच गया? AOC, for which this will be 1/2 into 2x into y. Okay, so this becomes 1/2 into 2x into 5. So this will be 5x plus xy. This is equal to 12 plus 12 plus xy. xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा. 5x equal to 24 है, तो यहाँ से x equal to 24/5 आ जाएगा. And hence answer will be 9.6 meters, option D. क्या ये समझ में आता है? Is that part clear? Okay. So answer comes out to be 9.6 meters. Is that clear? Okay. Next question. Find the number of non-negative integral points that satisfy 2x plus y greater than 16 and x plus 2y equal to 20. Non-negative integral points that satisfy 2x plus y greater than 16 and x plus 2y equal to 20. Okay. So ग्राफ बनाना पड़ेगा इसके लिए. तो x plus 2y equal to 20 and 2x plus y greater than 16. So first of all, let us make the graph of line x plus 2y equal to 20. So if you put x equal to 0, 2y equal to 20 आ गया, यानी y will be equal to 10. ठीक है, तो 0, 10 will be 1 point satisfying this line. So x is 0, y is 10. सेकेंड केस, y को 0 पुट कर दो, x over 20 आ जाएगा. तो 20, 0. So this will be our line x plus 2y equal to 20. Second is 2x plus y greater than 16. तो 2x plus y equal to 16. पहले लाइन का ग्राफ बना लेते हैं. Then we'll deal with inequality. 2x plus y equal to 16. That is our second line. Put y is equal to 0. So x will be equal to 8 because 2x is equal to 16. X should be equal to 8. और put x equal to 0. तो y will be 16. तो 8, 0 and 0, 16 will be the points. 8, 0. And second point is 0, 16. So this is second line. And we need 2x plus y should be greater than 16. ठीक है, सो किसी भी एक पॉइंट पे देख लो, फॉर एग्जांपल 8, 0 पे 2x plus y इज इक्वल टू 16. ठीक है, हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 16 चाहिए. तो इफ यू गो राइट वर्ड्स, अगर हम राइट वर्ड्स जाएं यानी कि x को इंक्रीज करें तो वैल्यू क्या होगा? 2x plus y विल बी ग्रेटर देन 16. फॉर एग्जांपल 8, 0 से गए 9, 0 पे. ठीक है, 9, 0 पे गए, तो जैसे ही तुमने x को 8 के बजाय 9 कर दिया तो 2x विल बी 18, y तो 0 है, तो 18 इज ग्रेटर देन 16, यानी कि 2x y विल बी ग्रेटर प्लस y विल बी ग्रेटर देन 16 इन विच रीजन? इन द रीजन ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, ऑन द राइट वर्ड्स. ओके, राइट वर्ड्स कह लो, अपवर्ड्स कह लो, क्या क्लियर है? सो दिस रीजन हियर इज ऑल वी आर कंसर्न. ठीक है, इस लाइन के राइट वर्ड्स जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स विल बी, फॉर ऑल पॉइंट्स 2x plus y विल बी ग्रेटर देन 16 फॉर श्योर. ओके, क्या ये क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर कि इन दिस रीजन, ठीक है, इन दिस रीजन ऑल पॉइंट्स विल हैव 2x plus y ग्रेटर देन 16. ओके, clear? So this is the region that we are concerned about. Now the question is saying find the number of non-negative integral points that satisfy both of these. यानी कि they are in this region. Additionally, they also satisfy this line equation. यानी कि इस लाइन पे लाई करें और नॉन नेगेटिव भी हो. नॉन नेगेटिव मीन्स they have to be greater than equal to 0. So we are only concerned with this line, this part of this line.
So we must find out the intersection point first. कि what is this intersection point? So 2x plus y equal to है 16, x plus 2y है 20, so 2x plus y 16 है तो 4x plus 2y will be 32 and x plus 2y है 20, subtract कर दो तो 3x will be equal to 12, x equal to 4 आ जाएगा और x equal to 4 पुट कर दोगे किसी भी एक इक्वेशन में. If x is equal to 4, y will be equal to 8. So 4,8 is this point. तो पहला सॉल्यूशन मिल गया 4,8. अब इसके बाद के जितने भी सॉल्यूशंस हैं मैं बस वो फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो x plus 2y हमारा इक्वल टू 20 है. x is 4, y is 8. Now नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? नेक्स्ट वैल्यू विल डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट ऑफ y. तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगा? अब अगर x को इंक्रीज करना है हमें क्योंकि राइट वर्ड जाना है, ठीक है, राइट वर्ड जाना है तो x को इंक्रीज करना है, x विल इंक्रीज, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? 4 + 2 6 एंड y विल बी 7 बिकॉज y डिपेंड करेगा x कोऑर्डिनेट पे विच इज इक्वल टू 1. तो y 1 से डिक्रीज हो जाएगा तो 8 - 1 7 आ जाएगा. देन नेक्स्ट वैल्यू भी 6 + 2 8 और y विल बी 7 - 1 6. देन 10 5 12 4 14 3 16 2 18 1 and 20 0. So these are all the points. These are all the points, isn't it so? कितने पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई करेंगे? बिकॉज द पॉइंट्स शुड बी इन द रीजन 2x plus y greater than 16. So this first point will not satisfy because this is when 2x plus y is equal to 16. All the other points will be part of the answer. So 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Total 8 points are there. 8 points will be satisfying. Answer will be option A in this case. ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर है? ओके. देखो अगर इन जनरल हम बात करते यहां पे तो काउंट कर सकते थे पॉइंट्स, अगर नहीं काउंट कर पाते हमें फर्स्ट वाला देखना था विच वॉज 6. देन देयर वाज अ पैटर्न, क्या है, एपी बन रहा था 6, 8, 10, 12 और लास्ट देखना था. तो आंसर हम स्ट्रेट अवे निकाल सकते थे कि 20 - 6 लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस क्योंकि एपी बन रहा है +1. So answer would have been 14/2 7 + 1 which is equal to 8. So 8 should be total number of points in this case. Okay. Simple question. Next one. Arun wants to renovate the flooring of his house. The living room, bedroom and kitchen are rectangular in shape and measure 12.8 meters cross 8 meters, 9.2 meters cross 8 meters and 7 meters cross 7 meters respectively. He wants the living room to be floored with wood and bedroom and kitchen to be floored with Italian marble. The cost of flooring with wood is rupees 1500 per meter square and Italian marble is 40% cheaper than the wood flooring. The total area of his house is 300 meters square and he wants 1/3 of the remaining area to be floored with Italian marble and rest with wood. So we have to find the difference in total cost of Italian marble flooring and wood flooring. Okay. ठीक है. So there are two types of flooring, wood flooring and Italian marble flooring. Or cost for each of them is, for wood the cost is rupees 1500 per meter square. Rupees 1500 for wood and Italian marble is 40% cheaper. 40% cheaper है, 2/5 cheaper है. तो if 5 rupees is cost for wood marble तो Italian के लिए क्या होगा? 3 units होगा. 2/5 कम होगा, 2/5 कम होगा. ठीक है, 40% चीपर है, 40% नहीं है, ध्यान देना है, 40% चीपर है. तो अगर 5 रुपीज का है वुड देन इटालियन मार्बल विल बी 3 रुपीज, तो 3/5 होगा. तो दिस विल बी 3/5 इंटू ₹1500. सो दैट विल बी 900 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. अब एरिया निकाल लेते हैं. ठीक है, सो लिविंग रूम का एरिया इज 12.8 इंटू 8 एंड लिविंग रूम इज टू बी फ्लोर्ड विद वुड. तो 12.8 into 8 meters. This will be 12.8 into 8 क्या है? 128 into 8 होता है 1024 2 to the power 10. So this will be 102.40 meter square. Area of living room. Similarly, area of bedroom and kitchen are to be floored with Italian marble. Bedroom का area है 9.2 into 8.
9 8 72 प्लस 1.6 तो 73.60 मीटर स्क्वायर. This is bedroom. And then 7 cross 7, which is 49 meter square. This is kitchen. तो कितना एरिया आ गया मेरा? 102.40 प्लस 73.60 प्लस 49.00. 10 plus 2 plus 73, 175 plus 1, 176 plus 49, 225 meter square. Total area is 300 meter square. So 300 में से 225 सब्ट्रैक्ट करोगे, रिमेनिंग कितना बचा? 225 प्लस 75 मीटर स्क्वायर रिमेनिंग है. दिस इज रिमेनिंग. और आउट ऑफ द रिमेनिंग एरिया 1/3 हैज टू बी फ्लोर्ड विद इटालियन मार्बल. 1/3 is to be floored with Italian marble. 25 meter square will be floored with Italian marble. And 50 will be floored with wooden marble. wood से, wooden marble नहीं, wood से फ्लोर होगा. ठीक है. सो 50 फ्लोर हो गया हमारा वुड से, तो प्लस 50 कर दोगे और यहां पे ऐड कर दोगे these two प्लस 25 मोर. तो टोटल एरिया कितना आ गया हमारा? इन केस ऑफ वुड एरिया इज 102.40 प्लस 50, तो 152.40 मीटर स्क्वायर. एंड फॉर इटालियन मार्बल विल बी रिमेनिंग. तो चाहे तो ऐड कर लो, अदरवाइज 300 टोटल है. तो बचा हुआ कितना बचा हमारा? 152.40 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आ जाएगा 147.60 मीटर स्क्वायर. So 152.40 meter square should be floored with wood and 147.60 should be floored with Italian marble. Difference of the cost चाहिए हमको. Difference क्या आ जाएगा? तो difference will be 152.40 multiplied by 1500, 147.60 multiplied by 900. ओके. अब चाहो तो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल लो. ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर सॉल्व कर लोगे. डेसिमल को हटा दो, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स थे तो 2 जीरोस को रिमूव कर दो. वही कहानी यहां पे भी करो. ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल लो. तो क्या वैल्यू आ जाएगा? फर्स्ट केस में दिस विल बी 15 into 0, 15 into 460, 6 कैरी हो गया. 15 to the 36, 36, 6, 3 कैरी हो गया. 75, 7, 2,28,600 minus 36, 6, 42, 4, 9, 4, 13. तो 1,32,840 सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ठीक है. सो क्या वैल्यू बचेगा हमारा? 28,600, 28,600 प्लस यहां पे कितना है? 67,160. So that will be 67 plus 28, 95,760. एक सेकंड कहीं गड़बड़ किया है क्या? 28,600 प्लस 67,160. कहाँ गलती की है? 6 आ गया. ठीक है, 6. ठीक तो लग रहा है. एंड 132,840 तो यहाँ वैल्यू आएगा. ठीक है, 54, 4, 5 कैरी हो गया. 68, 6 कैरी हो गया. ठीक है. सो आई गेस 95,660 आना चाहिए, 760 आना चाहिए. ऑप्शन में गड़बड़ लिखा हुआ है, ऑप्शन में गलत है, कैलकुलेशन में गड़बड़ है. ठीक है. सो कैलकुलेशन तो ठीक है अपना. 95,660 ही 760 ही आंसर होगा. दिस विल बी द आंसर. तो एक ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब देखो ये कैलकुलेशन करते समय भी हम थोड़ा सा चीज़ों को और इजी अपने रख सकते थे. कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं. तो डिफरेंस हमें चाहिए था अल्टीमेटली.
ठीक है, और डिफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए था 152.40 इंटू 1500। तो इस बार एग्जाम में कैलकुलेटर भी अवेलेबल होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट देखो 147.60 इंटू 900। ओके, सो ऐसे सोच सकते हो कि यू कैन ब्रेक दिस 152.40 इंटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक पार्ट हो गया हमारा 147.60 इंटू 1500, और एक पार्ट हमारा हो जाएगा बचा हुआ पार्ट विच विल बी 4.80 इंटू 1500 एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग बाई 147.60 इंटू 900। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट्स को मिला लो, तो 1500 माइनस 900 विल बी 600, so this becomes 147.60 into 600 plus 4.80 into 1500। डेसिमल हटाओगे ये 2 जीरो जाएंगे, डेसिमल हटाओगे ये 2 जीरो जाएंगे, so now this becomes 14760 into 6 and this part is 480 into 15। 480 into 15 will be 7200, okay, and this part is 14760 into 60, so 6 is 36, 6 बचा, ठीक है, 3 कैरी हो गया 42, 45, 5 आ गया, 4 बचा, 84 plus 4 88,560 plus 7,200, so this will be 88 plus 7 95,760 will be the answer। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। 95 कर देते हैं इसको। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, सो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इन दिस केस। इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेक श्योर टू आस्क दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। If you've not already subscribed to the channel, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram or WhatsApp channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYKT for any questions or queries. That is all for this session. Bye bye. Take care and keep learning.